Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I hope you all are fine. Alhamdulillah, I am also fine. Dear students, recite dua for increasing knowledge. Rabbi zidni ilma. ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा. Dear students, tell me. Day 1 में हमने क्या पढ़ा था? एनिमल्स के बारे में पढ़ा था? No. प्लांट्स के बारे में पढ़ा था? नो. ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ा था? यस. क्या पढ़ा था हमने? ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ा था. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. क्या क्या पढ़ा था हमने? कौन कौन से पार्ट्स पढ़े थे? बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स, ऑर्गन्स. तो आज हम इन सब चीज़ों की वीडियोस देखेंगे और रीडिंग करेंगे. तो क्या आप वीडियो देखना चाहते हैं? चलें आए हम सब वीडियो देखते हैं. Children, you have learnt about plants and animals so far. Now let us learn about ourselves. Human body is like a machine which works non-stop from birth to death. We get different stages in the life as a process of growth like infant, child, youth, adult and old age. Accordingly, our body is formed with small and big parts to do different functions. Come, let us study the non-stop wonderful machine of human body. Bones and muscles work together. The human body is made up of bones and muscles. Bones and muscles are covered with skin. Bones are strong and hard. They provide support and shape of the human body like a framework. All the bones in the body are together known as skeleton. They protect the soft inner body parts. There are some parts in our body without bones like tongue, lips and stomach. The place where two or more bones are joined together is called a joint. We can bend our body around the joints. Have a look at the picture. This is skeleton. Here is neck joint, elbow joint, wrist joint, hip joint, knee joint and ankle joint. Muscles. Our bones are covered with muscles. There are more than 600 muscles in our body which help us to move our bones. Bones and muscles work together to do functions like moving, working and playing. Healthy food and exercises help us in getting strong muscles. Posture. The position of our body while we stand, sit or walk is called posture. A good posture helps us to stay healthy and fit inside the body. As we have seen that skeleton protects some of the inner parts of our body. These parts have a special roles to do different functions. Have a look at them. Brain. Brain helps us to think and remember. These are lungs. Lungs help us to breathe. This is heart. Heart pumps blood throughout the body. It is also called pumping station. Stomach. Stomach helps us to digest our food. स्टूडेंट्स, आपने वीडियो देखी? आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी? यस. आपने क्या लर्न किया? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक बोन्स. और क्या सीखा आपने? जॉइंट्स एंड मसल्स के बारे में. ऑलराइट dear students, now we will start reading of unit 1. Open your textbook, page 2. Unit name is The
ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक ब्लॉक है येलो कलर का, इसमें लिखा हुआ है रिकॉल देयर आर नेम्स ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम्स हैं इस चैप्टर में। पीपल लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इस चैप्टर में आप लोगों को बताया जाएगा कि लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं। All living things grow, children grow into adults। आपने वीडियो में भी देखा है ना कि पहले हम बेबी होते हैं, फिर हम बॉय बन जाते हैं और फिर मैन एंड देन ओल्ड मैन। तो ये इस तरह हम ग्रो करते हैं। हमें ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? फूड की, हेल्दी फूड की। हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, एग्स, और हमें अपनी डाइट में हेल्दी फूड यूज़ करना चाहिए। वेरी गुड। वी कैन मूव इन डिफरेंट वे। हम मूव कर सकते हैं ना? स्टैंड अप, आप सब खड़े हो जाएं। नाउ मूव। जी, ये आप मूव कर रहे हैं ना? ये किसकी वजह से कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ बोन्स। तो इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि हम मूव कर सकते हैं। वी यूज़ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू सेंस द वर्ल्ड अराउंड अस। हम अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स यूज़ करते हैं हमारी इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें उनको समझने और जानने के लिए। जैसे कि हम कोई चीज़ देखते हैं तो देखकर हम बताते हैं ना कि इसका कलर कौन सा है। आपके सामने कौन सी चीज़ है और वो किस कलर की है? यस। इसी तरह आप कोई आवाज़ सुनते हैं, मम्मा आपको बुला रही हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपकी मम्मा बुला रही हैं या बाबा बुला रहे हैं। पता चल जाता है ना? तो ये किसकी मदद से पता चलता है हमें? कानों की मदद से। वेरी गुड। अब नेक्स्ट ब्लॉक में आ जाएं, ग्रीन ब्लॉक में। यू विल लर्न दैट। हम ये चैप्टर रीड करने के बाद क्या क्या चीज़ें लर्न करेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। तो क्या क्या आएगा? योर बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, बोन्स, जॉइंट्स, मसल एंड ऑर्गन। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स। और तमाम के तमाम मुख्तलिफ काम करते हैं। ऐसा ही है ना? अब आँखें देख सकती हैं, कान देख सकते हैं? नहीं, कानों से हम सुन सकते हैं। तो इन दोनों का अपना अपना काम है। ऐसा ही है ना? वी हैव 5 डिफरेंट ऑर्गन विच वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड अराउंड अस। मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारे पास ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स हैं जिसकी वजह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। जैसे कि हम देख कर बता सकते हैं ये चीज़ किस कलर की है, और सुनकर बता सकते हैं ये किसकी आवाज़ है, स्मेल करके बता सकते हैं कि आज खाने में क्या बना है, और टच करके बता सकते हैं कि ये चीज़ गर्म है या ठंडी है। ऐसा ही है ना? तो उन ऑर्गन्स को जो हम सेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनसे हमें चीज़ों की समझ आती है, हम उन्हें क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन। तो क्या आप रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं? मेरे साथ रीड करना चाहते हैं ये चैप्टर? यस। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो न्यू वर्ड्स या न्यू टर्मिनोलॉजीज हम लर्न करेंगे वो हैं वेरीज। वेरीज का क्या मतलब होता है? डिफरेंट। जैसे दो सिमिलर चीज़ें होती हैं, एक जैसी होती हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? सेम या सिमिलर। लेकिन अगर वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं तो हम क्या कहते हैं? डिफरेंट। तो वेरीज का क्या मीनिंग हुआ? डिफरेंट। वेरी गुड। अपराइट, इस वर्ड से ही पता चल रहा है ना? राइट। एक राइट होता है और दूसरा क्या होता है? लेफ्ट। अपराइट मीनिंग सीधा। वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज बेंड। बेंड किसे कहते हैं? एक होता है स्ट्रेट और सेकंड वन क्या होता है? बेंड, मोड़ना या झुक जाना। लास्ट वन इज मसल्स। मसल्स क्या होता है? जिसकी वजह से हम मूव कर रहे हैं, वॉक कर सकते हैं, उसे हम मसल्स कहते हैं। स्टार्ट द रीडिंग ऑफ यूनिट 1। ह्यूमन बॉडी वेरीज इन साइज एंड शेप। ह्यूमन बॉडी की, इंसानों की शेप और साइज़ बॉडी का
एक दूसरे से डिफरेंट होता है। पीपल कैन बी टॉल और शॉर्ट, वीक और स्ट्रॉन्ग। लोग एक दूसरे से कैसे मुख्तलिफ होते हैं? कुछ लोग टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, कुछ बहुत हेल्दी होते हैं, फैट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? वीक होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे से शेप एंड साइज में डिफरेंट होते हैं। बट ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव सिमिलर बॉडी पार्ट्स। लेकिन तमाम ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं ना, वो सबके सेम होते हैं। जैसे कि आपकी मम्मा की भी 2 आइज़ हैं, आपकी भी है, आपके बहन भाइयों की भी 2 आंखें हैं, ऐसा ही है ना। जैसे कि सबके 2 ईयर्स होते हैं, सबकी 2 हैंड्स होते हैं, सबकी नोज़ होती है। इसी तरह हमारे सब लोगों के, सब ह्यूमन बीइंग्स के पार्ट्स बॉडी के सेम होते हैं। और बॉडीज़ हैव मैनी पार्ट्स। हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट कौन सा बताया हुआ है? बोन्स। बोन्स के बारे में फर्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो क्या है? बोन्स। द बोन्स ऑफ योर बॉडी मेक अप योर स्केलेटन। आपकी बॉडी की जितनी भी अंदर बोन्स है ना, वो सब मिलकर क्या बनाती हैं? मेकअप। जब मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है? एक स्केलेटन बनता है। ये बहुत सारी डिफरेंट बोन्स हैं, ये सब मिली हैं तो एक स्केलेटन बना है। A skeleton helps us to stand upright and gives shape to the body. ये स्केलेटन हमें खड़ा होने में, हम सीधा जो खड़ा होते हैं ये स्केलेटन की वजह से होते हैं ना। हमने क्या पढ़ा था? अपराइट का क्या मतलब है? सीधा। तो हम सीधा किसकी वजह से खड़े होते हैं? स्केलेटन की वजह से। एंड गिव्स शेप टू द बॉडी। और बॉडी को स्केलेटन ने एक शेप दी हुई है। अगर स्केलेटन ना होता तो क्या होता? जैसे हैंगर ना हो तो हम कपड़े कैसे क्या होते हैं? गिर जाते हैं। इसी तरह स्केलेटन ना होता तो हमारी स्किन तो गिर जाती। एवरी टाइम वी वॉक, sit on a chair or bend, we are using our bones. हम हर टाइम क्या करते हैं? वॉक करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, बैंड मुड़ जाते हैं, ये चुके कोई चीज़ उठा लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये सारे काम हम कैसे कर सकते हैं? अपनी बोन्स को यूज़ करके कर रहे हैं। वेरी गुड। व्हेन वी बिकम एन अडल्ट वी हैव 206 बोन्स इन आवर बॉडी। जब हम बड़े होते हैं, जवान हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स। एक बड़े इंसान की बॉडी में 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। वेरी गुड। और एक बेबी की बॉडी में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? 300। बेबी बॉडी में 300 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। वेरी गुड। स्टूडेंट्स, आप इस ब्लू बॉक्स में आ जाएं। डू यू रिमेंबर? क्या आपको याद है? मैन एंड वुमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स आर कॉल्ड human beings. Boys, girls, men and women are called human beings. All human beings have similar parts of body. मैंने आपको बताया है ना कि सबके पास similar parts of body होते हैं. But we look, think and behave differently from each other. लेकिन हम एक दूसरे से मुख्तलिफ, देखने में मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम मुख्तलिफ ना होते तो क्या होता? फिर तो हम जज ही ना कर पाते कि ये कौन सा स्टूडेंट है। जैसे कि आबान है तो हमें कैसे पता चलता? सब आबान की जैसे नज़र आते तो मुझे तो फिर ना पता चलता कि कौन से आबान है ना। आयत का ना पता चलता कि कौन सी आयत है। इसी तरह किसी भी स्टूडेंट का मुझे पता ही ना चलता। इसी तरह आप सोच भी सकते हैं, सब अलग अलग सोचते हैं। ऐसा ही है ना। बिहेव भी अलग से अलग करते हैं। हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी सिमिलर हैं लेकिन हम दिखते अलग हैं और हम सोचते भी एक दूसरे से अलग हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग इज मसल्स एंड जॉइंट्स। इस पैराग्राफ में हम मसल्स एंड जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बोन्स डू नॉट वर्क अलोन। हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो अकेले काम नहीं करती। दे मूव विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स। ये किसकी हेल्प से मूव करें? मसल्स एंड जॉइंट्स की।
ये आपकी आर्म है ना, यहाँ पर जो आपका स्ट्रॉन्ग सा आपको फील होता है टच, आप अपनी अपर आर्म टच करें, आपको स्ट्रॉन्ग सा फील होगा, सख्त सी चीज़। ये हमारे मसल्स हैं और ये बोन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर हमारी फिर स्किन होती है जिसने ये सारी चीज़ों को छुपाया हुआ है। और जहाँ पे टू बोन्स मीट होती हैं, मिलती हैं, ये देखें, ये वाली बोन और ये वाली बोन जहाँ पे मिल रही है उसे हम क्या कह रहे हैं? ज्वाइंट। तो बोन्स अकेले काम नहीं करती, ये किसकी हेल्प से करती हैं? मसल्स एंड ज्वाइंट्स की हेल्प से। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड अ ज्वाइंट। जहाँ पर दो बोन्स मिलती हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? ज्वाइंट कहते हैं। ज्वाइंट्स हेल्प द स्केलेटन टू मूव। They allow us to walk, run, bend or lift things. Joints हमारे स्केलेटन को मूव करवाने में, इतना बड़ा हमारा स्केलेटन है, हम कैसे मूव करते? सारी हड्डियाँ अगर जुड़ जाती तो ना कर सकते ना। जैसे कि आपका डोर है, अपने डोर के पास जाएं, रूम के डोर के पास जाएं, उसे मूव करवाएं। वो क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि उसमें एक हुक लगी हुई है जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है। आपकी कोई वॉल मूव कर सकती है? नहीं ना। इसी तरह पूरा स्केलेटन भी अगर सारी हड्डियाँ जुड़ जाती तो मूव ना कर सकती। सारी हड्डियाँ अगर जुड़ जाती तो वो मूव ना कर सकती। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में जितनी भी बोन्स हैं उन सब ने जॉइंट्स बनाए हैं जहाँ जहाँ मूव करने की ज़रूरत है। वो क्यों बनाए हैं? अस टू वॉक, ताकि हम चल सकें, हम भाग सकें, बेंड हो सकें, झुक सकें और चीज़ें उठा सकें। डियर स्टूडेंट्स, अब इस पर्पल ब्लॉक में आ जाएं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? सम इंसेक्ट्स हैव स्केलेटन आउटसाइड देयर बॉडीज। सच स्केलेटन आर कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। कुछ इंसेक्ट्स, कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जिनका स्केलेटन आउटसाइड बॉडी के बाहर की तरफ होता है, मतलब जैसे उनकी बाहर की बॉडी होती है ना, वही उनका स्केलेटन होता है। सच स्केलेटन आर कॉल्ड, और ऐसे स्केलेटन को हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। लाइक देखें, बी, जो मक्खियाँ होती हैं उनका स्केलेटन आउटसाइड होता है बॉडी के। हनी बी, लेडी बर्ड, बटरफ्लाई, ऐसे इंसेक्ट्स को हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं क्योंकि इनका स्केलेटन बॉडी के आउटसाइड होता है। जिनका अंदर की तरफ होता है उन्हें क्या कहते हैं? एंडोस्केलेटन। जिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्केलेटन बॉडी के इनसाइड होता है उनको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। किन किन का अंदर की तरफ होता है? एनिमल्स का। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स का स्केलेटन बॉडी के इनसाइड होता है, अंदर की तरफ होता है, तो उन्हें हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, वो भी कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जिनका बाहर की तरफ होता है, उन्हें हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जितना हमने पढ़ा है उसके एंड पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट चेक है। जो हमने पढ़ा है ना उसका छोटा सा टेस्ट है। आप चाहते हैं आपको पता चले कि आपने जो पढ़ा है वो आपको समझ आया है या नहीं? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट इज़ मेड अप ऑफ। जो जवान लोग होते हैं उनका स्केलेटन कितनी बोन्स से मिलकर बनता है, या उनकी बॉडी में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? 206। इस फिलिंग दी ब्लैंक्स को में फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर है 206। टेक योर पेंसिल एंड राइट हेयर 206। गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। स्टेटमेंट 2, हमारे पास इसकी दो ही स्टेटमेंट्स हैं, 1 एंड 2। 1 हमने सॉल्व कर लिया और सेकंड हम अब सॉल्व करेंगे। यू नीड डैश एंड डैश टू मूव। हमें मूव करने के लिए या अपनी बॉडी को मूव करवाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। कौन कौन सी? हमने ऊपर क्या पढ़ा था? हमारी बॉडी को मूव करने के लिए
किन दो चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है? मसल्स एंड ज्वाइंट्स। मसल्स एंड ज्वाइंट, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, राइट? मसल्स, MUSCLES, मसल्स, ज्वाइंट्स, JOINTS, joints, muscles and joints. गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। अब आपने एक बार फिर से इस चैप्टर को रीड करना है। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या लर्न किया? बोन्स, मसल्स एंड ज्वाइंट्स। कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं एक एडल्ट बॉडी में? 206 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, आपने इस चैप्टर की 2 to 3 टाइम रीडिंग करनी है। अपनी मम्मा को या अपने पापा के पास बैठकर उन्हें ये रीडिंग सुनानी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।